Okay, so now let's discuss more about it in depth. And when we'll move to the next step, it is defining target audience. When we'll say target audience, it means simple the market or the consumer we want to reach out to sell our product. We have discussed in second module that how to identify a customer and validate that. It is an explanatory version of the same thing you can say. Why? Because here we will discuss and find out that how we can decide our audience, what is the significance of that audience, and what all types of that audience. Right? Identify customer segment is one of the most important factors. And when we'll identify the customer segment, we'll find out that there are early adopters, right? Along with another four type of adopters we will discuss in detail. But the significance of early adopters in any life cycle of an entrepreneur once they are in the market or once they create the go-to market is very, very essential. So early adopters are the must, and then demographics, psychographics, behavioral, geographic segmentation, wherein we will analyze data to refine messaging and improve targeting precision. So one by one, we'll discuss that. When we'll discuss it, there are five type of adopters, and this is a model which is created by Albert Rogers, who was a sociologist, sorry. And this adopters are divided into these adopters are divided into five major categories. One is innovators, then early adopters, then early majority, late majority, and laggards. So, we have highlighted early adopters here. There is a reason, and once we'll, get the understanding of this one by one, then you will also understand that why early adopters are a key factor for any go-to-market strategy, right? And see, we need to understand every customer is important, every consumer is important, every buyer, every user is important, but we have to segment it, we have to segregate them so that for us as an entrepreneur, it is very not only easy but very important so that we can tap the correct market at correct time. Innovators, these are the first to adopt new product, often driven by high tolerance for risk and a desire to be amongst the first. See, there are people uh, who wants to try everything. There are new product in the market, they buy. But it doesn't mean that they like the product or they endorse the product, right? They just want to use it. So anything is new, they'll just buy, right? And we cannot trust them as as a uh, I would say the catalyst of success for us in terms that any innovator in this segment, any innovator who buys our product for the sake of just among the first, we just cannot call them that they will influence other people to buy that. They buy it for their own satisfaction or their own drive of risk, right? Then early majority. We'll skip the early adopters here and we'll move to early majority and then we will come back to early adopters. Early majority, the group adopts a product after it's been widely accepted and validated by others. Simple. जब कोई चीज मार्केट में आ जाती है वैलिडेट हो जाती है एक्सेप्ट हो जाते हैं कि हाँ यार ये बढ़िया चीज है, हम ले लेते हैं, वो अर्ली majority है. Late majority, this group is skeptical and adopts a product only when it becomes mainstream and widely accepted. अर्ली मेजॉरिटी और लेट मेजॉरिटी में फर्क क्या है? अर्ली मेजॉरिटी है वो ये कहती है कि एक प्रोडक्ट है जो कि अब ना एक्सेप्टेड हो गया है सब जगह पे और सबने उसको वैलिडेट कर लिया है, तो हम भी ले लेते हैं, ट्राई कर लेते हैं. लेकिन लेट मेजॉरिटी क्या कहती है? वो ये कहती है कि मैं इस प्रोडक्ट को तभी यूज करूंगा जब ये मेन स्ट्रीम का पार्ट हो जाएगा. मेन स्ट्रीम मीन्स दैट हर दूसरा इंसान जब इसको यूज कर रहा है, हर दूसरा तीसरा इंसान इसको यूज कर रहा है, right? And then laggards, these are the last to adopt a product and often resistant to change. जो change नहीं करना चाहते, they just want to stick with what they are using, but
बिल्कुल एंड में अगर जरूरत ही पड़ गई, कोई मजबूरी है, तो कहते हैं कि चलो यार ये ले लेते हैं। तो ये सेगमेंट इनोवेटर्स, अर्ली मेजोरिटी, लेट मेजोरिटी, लैगर्ड्स में डिस्ट्रीब्यूटेड। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है अर्ली अडॉप्टर्स, जो सेकंड स्टेज होती है अडॉप्टर्स की, जिसको एवर्ट रॉजर्स ने एक्सप्लेन किया है। सी, आपको ना इस डायग्राम में एक चीज समझ में आ रही होगी कि अर्ली मेजोरिटी और लेट मेजोरिटी का ग्राफ थोड़ा ऊपर है, तो अर्ली अडॉप्टर्स इंपॉर्टेंट कैसे हुए? सो आई विल टेल यू देयर इज अ कैच इन दिस। और ऐसे ही नंबर गेम काम करता है बिजनेस में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर एनी एंटरप्रेन्योर टू अंडरस्टैंड। Early adopters are typically younger, have higher social status, more financial resources, and are more educated than later adopters. They are also open to taking risk and are less concerned with the price of a product when it's new. ये जो लोग होते हैं ना, अगर इन्होंने आपके प्रोडक्ट को यूज किया तो ये एज एन इन्फ्लुएंसर काम करते हैं। और यही वो लोग हैं जो एक ऐसा ब्रिज क्रिएट करते हैं आपके प्रोडक्ट के लिए, जो आगे जाके अर्ली मेजोरिटी और लेट मेजोरिटी तक जाता है। बिकॉज अर्ली मेजोरिटी का जो लोग हैं, वो इनो देखिए, आपको एक चीज अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी, हम थोड़ा सा रिवर्स जाता है। लेगर्ड्स किसी भी चीज को तब अडॉप्ट करते हैं जब वो लेट मेजोरिटी का स्टेज को क्रॉस कर लेता। लेट मेजोरिटी किसी भी चीज को तब एक्सेप्ट करता है जब वो अर्ली मेजोरिटी की स्टेज को क्लियर कर लेता। एंड सिमिलरली अर्ली मेजोरिटी के लोग तब आते हैं जब अर्ली अडॉप्टर्स उसको यूज कर लेते हैं। तो अर्ली मेजोरिटी, लेट मेजोरिटी एंड लैगर्स आर कम आफ्टर अर्ली अडॉप्टर्स। लेकिन अर्ली अडॉप्टर्स जो होते हैं, उनका इनोवेटर्स के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, बिकॉज इनोवेटर बाय इट जस्ट बिकॉज ऑफ देयर रिस्क ड्रिवन टॉलरेंस, और उनको बस लेके देखना है। जो अर्ली अडॉप्टर्स होते हैं ना, उस प्रोडक्ट को लेते हैं, यूज करते हैं, उसको डन करते हैं, उसको एक्सेप्ट करते हैं, वैलिडेट करते हैं, देन इट ट्रेवल्स टू अर्ली मेजॉरिटी, लेट मेजॉरिटी, लैग। सो दैट्स व्हाई जो अर्ली अडॉप्टर्स होते हैं, वो किसी भी बिजनेस में, हर एक एंटरप्रेन्योर के लिए, हर एक बिजनेस मॉडल में अर्ली अडॉप्टर्स आर द टारगेट ऑडियंस स्पेसिफिकली, राइट? आपको समझना पड़ेगा कि जब आप किसी प्रोडक्ट को, किसी सर्विस को मार्केट में लेकर आते हैं, तो वो लोग कौन है जो आपको ना सिर्फ सबसे पहले यूज करेंगे आपके प्रोडक्ट को और सर्विस को, बल्कि उसको प्रमोट भी करेंगे, राइट? इसका एक एग्जांपल ये है कि कुछ लोग होते हैं जो, जब आप कोई साइट देखते हो, आजकल एआई टूल्स बहुत आ रहे हैं, तो अगर आप कोई प्रेजेंटेशन बनानी है, या आपको कोई छोटा सा पिक्चर क्रिएट करनी है, तो आप जाओगे, आप सर्च करोगे वेब पे कि एआई टूल, बहुत सारे टूल्स का एग्जाम्पल आ जाएगा, और सैंपल्स आ जाएंगे गूगल पे। तो आप क्या करोगे, किसी एक पे जाओगे, क्लिक करोगे, अगर फ्री है तो आप यूज करोगे, नहीं तो बाहर निकल जाओगे। यूज करोगे, बाहर निकल जाओगे। वो एक तरीके से ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है फॉर इनोवेटर्स, ताकि कोई उनकी रिस्क टॉलरेंस है कि ठीक है, अपनी आईडी से लॉग इन कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर काम हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो दूसरे पे जाओ, दूसरे पे जाओ। दे आर इनोवेटर्स। बट अर्ली अडॉप्टर्स क्या होते हैं, वो गए, उनको एक टूल दिखा, उन्होंने उस टूल को पूरा यूज किया, वैलिडेट कर दिया, अपने दोस्तों को बोला कि यार तुम ये यूज करो। फिर वो कहते हैं कि यार मैंने तो ये पीपीटी इससे बनाई है, मैंने पीपीटी इससे बनाई है। फिर वो आगे आगे जाता है, फिर वो मेजोरिटी तक जाता है, फिर लीड मेजोरिटी तक, फिर नेगेट्स तक। तो दिस इज द डिफरेंस। जो भी अर्ली अडॉप्टर्स होते हैं, वो हमेशा लीड करते हैं अर्ली मेजोरिटी, लेट मेजोरिटी और लेगेट्स। सो दैट्स व्हाई फॉर एनी बिजनेस, अर्ली अडॉप्टर्स are the ideal and key audience, and it has to be precisely done when any entrepreneur create a plan to target the ideal audience or the ideal target, right? Understood? So early adopters are very, very, very important. Okay, and then let's define the target audience here in the uh, segmentation part. One is demographic segmentation. We have discussed here that we need to, in the target audience, there are demographics, there are uh, psychographics, behavioral,
geographical segmentation, right? So now we will discuss it one by one in detail. Demographic: divide consumer based on measurable, quantifiable characteristics like age, gender, income. We have discussed it. जब हम किसी भी पर्सोना क्रिएट करते हैं, प्रोफाइल क्रिएट करते हैं, तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि इनका एज क्या है, जेंडर क्या है, इनकम क्यों। वी हैव डिस्कस दैट बिजनेस डेवलपमेंट मॉडल में कि ये वाले एनालिटिक्स हमारे काम आते हैं, ये क्वांटिटेटिव एनालिटिक्स हैं। कौन किस एज ग्रुप का है, ठीक है, इस एज ग्रुप के लोग हमारा प्रोडक्ट ज्यादा यूज कर रहे हैं, ओके, इस जेंडर के लोग ज्यादा यूज कर रहे हैं, इनका ये ऑक्यूपेशन है तो इस ऑक्यूपेशन को टारगेट करेंगे। सो दैट्स हाउ इट वर्क्स। टारगेटिंग ए स्पेसिफिक एज ग्रुप विद मार्केटिंग कैंपेन फॉर बेबी प्रोडक्ट्स, यस। अगर आपको एक एक टारगेट एज ग्रुप आपने रखा कि 27 से 32 साल की जो एज ग्रुप में फर्स्ट टाइम मदर फीमेल ज्यादा बन रही हैं, अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं, तो हम 27 से 32 साल की एज ग्रुप के फीमेल्स को ज्यादा टारगेट करेंगे फॉर बेबी प्रोडक्ट्स। क्योंकि हम सेकंड टाइम मदर को वो टारगेट इसलिए नहीं करेंगे ज्यादा, क्योंकि उनको एक एक्सपीरियंस्ड है तो दे नो कि व्हाट टू यूज। लेकिन जो फर्स्ट टाइम मदर है उनको हम टारगेट कर सकते हैं। सो दिस इज वन एग्जांपल, राइट? दैट्स हाउ इट वर्क्स। ओके। अगर आप किसी स्पोर्ट्समैन है जो जिनका ऑक्यूपेशन है स्पोर्ट्स, लेट्स से हम ऑक्यूपेशन इसको कह रहे हैं, बट अगर किसी का ब्रेड एंड बटर स्पोर्ट्स है, लाइक समबडी इज प्लेइंग क्रिकेट फॉर एन एग्जांपल, तो हम उस डेमोग्राफी पे अगर हमारे हमारा प्रोडक्ट बैट है, तो हम ऐसा तो नहीं है ना कि जो इस आईटी में काम कर रहा है, हम आईटी कंपनीज में जाके अपना बैट सेल करेंगे। तो हम ऐसी जगह पे टारगेट करेंगे जहाँ पे कि हमको पता है कि ये वाली जो एरिया है, यहाँ पे बहुत सारी स्पोर्ट्स अकेडमीज हैं, यहाँ पे बहुत सारे यंग बच्चे आते हैं, और चाहे बड़े भी आते हैं, क्रिकेट सीखते हैं, यहाँ पे सारी स्पोर्ट्स का एरिया, तो वहां पे हम अपने बैट को सेल करेंगे, तो द चांसेस आर हाई। सो दैट्स व्हाई दीज डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन आर वेरी इंपॉर्टेंट। कौन क्या काम करता है, उसका फैमिली साइज क्या है, जेंडर क्या है, इनकम क्या है, एजुकेशन क्या है। सो दीज फैक्टर्स आर क्वांटिटेटिव, नंबर्स में होते हैं, हेल्पफुल होते हैं। ज्योग्राफिक सेगमेंटेशन डिवाइड्स कंज्यूमर बेस्ड ऑन देयर ज्योग्राफिकल लोकेशन। जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि कोई प्रोडक्ट है वो नॉर्थ में ज्यादा पेनिट्रेट कर रहा है, साउथ में कम कर रहा है, बिकॉज मे बी टेम्परेचर की वजह से। कोई खाने की चीज है, एफएमसीजी प्रोडक्ट है कोई, है ना, वो एक एक रीजन में शायद ज्यादा चल रहा है, एक रीजन में कम चल रहा है बिकॉज ऑफ द वेदर। ऐसा ऐसा हो सकता है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी। अगर हम कश्मीर की तरफ जाते हैं या अपर पहाड़ों की तरफ जाते हैं, वहां पे ड्राई फ्रूट ज्यादा लोग कंज्यूम करते हैं, क्योंकि सर्दियां होती हैं वहां पे, एनर्जी के लिए उनको वो चाहिए होता है, उनको पहाड़ों पे खुद पैदल उतरना चढ़ना है। व्हेन इट कम्स टू द नॉर्मल प्लेन्स, तो वहां पे, और अगर एक्सट्रीम नॉर्थ है जैसे राजस्थान हो गया, या फिर ये अपना दिल्ली हो गया, चंडीगढ़ हो गया, इन इन एरियाज पे टेम्परेचर के, सर्दियों में शायद ड्राई फ्रूट ज्यादा यूज होते होंगे, गर्मी में शायद कम, क्योंकि टेम्परेचर वैसे ही ज्यादा होता है, ड्राई फ्रूट गर्म होते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल है, आपके हाउस होल्ड में देखिए, आप घरों में भी देखिए कि शायद सर्दियों में आपके खाने में ज्यादा ड्राई फ्रूट का यूज होता होगा, लेकिन गर्मियों में एज कम्पेरेटिवली वो थोड़ा कम हो जाता है। मेरे तो हो जाता है, मैंने ये चीज बहुत बचपन से नोट करी है कि जब जैसे ही वेदर थोड़ा सा समर्स में आने लगता है, the usage of dry fruits are comparatively less, as compared to winters. So ये ज्योग्राफी का बड़ा फर्क पड़ता है। ये एक एग्जांपल है, राइट? And then groups consumer based on psychological traits, including lifestyle, personality, value, attitude, and interest. Targeting individuals who value organic and sustainable product. अगर आज की डेट में आप हाई इनकम ग्रुप में जाएंगे, जो कि एक स्पेसिफिक, लेट्स अज्यूम दैट एनीबडी हु इज गेटिंग अ सैलरी पैकेज ऑफ मोर देन 35 to 40 lakhs एनुअली, उनका जो अभी हैबिट्स हैं, दे आर गेटिंग चेंज, ईटिंग हैबिट्स भी, और ऑब्वियसली उनका अटायर भी। सो इफ आई एम टारगेटिंग सम, इफ आई हैव अ प्रोडक्ट लाइक जैगरी, गुड़ की हम एग्जांपल लेते हैं, अगर आई हैव अ प्रोडक्ट रिलेटेड टू जैगरी, and if I'm reaching out to a consumer, or person who is getting a salary of 30-40 lakhs or more than that, and you know their habits and their traits of living is different now, so I will pitch them organic jaggery. Why? Because मुझे पता है कि वो थोड़ा सा
उस एरिया के, उस साइकोलॉजी के लोग हैं कि उनको पता है कि यार हम थोड़ा सा क्लीन खाना है ना। हम जितना बेहतर होगा, हमको अभी कॉस्ट की वैल्यू, अब अभी हम कॉस्ट के को ज्यादा ऊपर नहीं रख रहे हैं, अभी हम फीचर्स को ज्यादा ऊपर रख रहे हैं, राइट। एंड मोर सस्टेनेबिलिटी बिकॉज दे आर मोर एजुकेटेड नाउ दे। हम ऐसा अज्यूम कर सकते हैं कि जो इस सैलरी ब्रैकेट में लोग बैठे हैं उनका जो लर्निंग कर्व है वो बहुत डिफरेंटली कभी काम कर रहा है। सो देयर यू नो their inclination towards the sustainability is obviously more as compared to other people. और ऐसा होता भी है, आप अगर अपने ऑफिस में बैठे अपने किसी सीनियर के साथ बात कर रहे हैं, या अगर आपका कोई मेंटोर है जो कि 20-25 साल इंडस्ट्री में काम कर चुका है, तो द आइडियाज दे विल गिव यू, दे विल मोर इनटू द सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड कि ओके वी कैन सेव दिस फॉर एनवायरनमेंट, हम यहाँ पे ये कॉस्ट सेव कर सकते हैं, व्हाई बिकॉज दे हैव ऑलरेडी सीन दैट, सो दे आर साइकोलॉजिकली दे आर ऑलरेडी देयर, you know. And so what you need to pitch them, you need to pitch them something which is more organic, more sustainable, right? This is just one example. There are many other ways that you can reach out to them, and sometimes story works there, right? When people are psychologically more awakened than, or their needs and their spiritually more awakened, and their needs and their attitude has been to a different level, then sometimes not the feature but the story, uh, they connect to story more as compared to the features of the product, that how it made and how it giving back to society. So everything. And then behavioral segmentation, categorize consumer based on their purchasing behavior, including buying frequency, brand loyalty, usage rate, uh, and a response to marketing stimuli, and targeting in infrequent customers with a special offer to encourage repeat purchases. Now, what is the example of this? Dabur Chyawanprash ब्रांड लॉयल्टी है। मुझे याद है कि बचपन से हमने कभी च्यवनप्राश को च्यवनप्राश बोला ही नहीं, हमने डाबर च्यवनप्राश बोला, राइट। वो होता है ना, कुछ एक ब्रांड का नाम ही बन जाता है उसमें। कार, अब जैसे अब हमारे नॉर्मल हाउस होम में, मिडिल क्लास फैमिलीज में, अगर मैं अपने घर जाता हूँ जहाँ मेरे पेरेंटल होम है, और अगर मैं अपने नानू के घर जाता हूँ जो कि अ, मेरे मैटरनल होम है, वहां पे जब मैं जाता हूँ तो वहां पे क्या होता है कि कैसे नॉर्मल लैंग्वेज का यूज किया जाता है कि मारुति की गाड़ी लिए, मारू दे डू नॉट नो, मे बी दे आर नॉट अवेयर ऑफ द नेम ऑफ विच कार, बट फॉर देम मारुति इज सेफ, दैट मारुति की गाड़ी ले लो। वो ये नहीं कहते हैं कि आप स्विफ्ट ले लो या ब्रेजा ले लो या सिलेरियो ले लो, वो कभी ऐसे आपको ब्रांड का नाम नहीं बोलेंगे, वो बोलेंगे मारुति की गाड़ी ले लो। दिस इज ब्रांड लॉयल्टी। च्यवनप्राश तो डाबर का ले लो। तो अगर आपको कोई और प्रोडक्ट बेचना है तो यू हैव टू बी टारगेट देम विद सम लुक्रेटिव ऑफर्स, और मे बी एक बार आप उनको किसी तरीके से ट्राई करवाइए अपना प्रोडक्ट, एंड व्हेन दे यूज इट, देन इफ दे लाइक इट, देन ऑब्वियसली दे विल परचेज अगेन। ऐसा नहीं है कि ब्रांड लॉयल्टीज कभी ब्रेक नहीं हुई है। कंज्यूमर एक ब्रांड से दूसरे ब्रांड पे शिफ्ट करता है, लेकिन उसके लिए वो ब्रांड की क्वालिटी प्लस हाउ यू कम्युनिकेट, हाउ यू engage, what we have discussed earlier, राइट, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस वाले सेगमेंट को जब हम डिस्कस करते हैं, तो एक एक फैक्टर बहुत अच्छे से निकल के आता है जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया था, दिस इज विजिबिलिटी एंड एक्सपोजर, राइट। ब्रांड बिल्डिंग, राइट, कम्युनिटी एंड नेटवर्क, ये तीन चीजें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाती हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आपका कम्युनिकेशन, आपकी स्टोरी लाइन वो बहुत हेल्प करती है, राइट। सो when we are focusing our audience, right, when we focusing on our audience, it is very very important for us to target the ideal market, what kind of product we have, and if we'll keep our mind in a in a straight trajectory, that the end goal is to convert this consumer eventually to buy our product, convince or convert. At that time, these segmentations are very very important for any entrepreneur to keep in mind. Very very important. Demographic, geographic, psychographic, and behavior. It helps us to penetrate. It helps us to catch traction.
and grow our product in the market. Understand, entrepreneurs?